number 361. Bill of the House. First supplementary, Mani G.C. Chandrasekhar ji. Sir, Anganwadi and Poshan 2.0 scheme, umbrella program under ICDS, to which rupees 20,263 crores has been budgeted. Last year's revised estimate was rupees 20,000 crores, which is just 0.5% increase and a decrease by 4,294 crores in comparison with the budget estimated compared to last year. Sir, as per the RTA reply from Ministry of to Ministry in 2021 November, 33 lakh children are malnourished and global hunger index ranks in India at 101 out of 116 countries. Please put your question. With the growing food inflation, WPI stands at 10.33% and GPI at 5.43%. Please put your question. Sir, how is the department going to handle with a very Chandrasekhar small ji. rise of budget? Please. To the honourable member to correct the figures that he has quoted with regards to increase in budget. As has been enunciated time and again in this House, and if the member may so desire to reflect on part B of the answer already given to him, he may see that the budget is increased by 10%. I would, however, like to inform through you, sir, to the honourable member that the Poshan tracker methodology of digitally tracking the performances of Anganwadis, including measuring our children as per WHO standards, I can share through you, sir, that for the month of February, when over 1 crore children were weighed as per the WHO standards, the number of children found to be SAM children is close to 2%, which is much less than the number that has been enunciated by the honourable member. We have reached out to a third party, which is namely the Indian Academy of Pediatrics, to ensure that these numbers are validated. And I hope the member can, with due respect to him, reflect on the answer given, which is sufficient with regards to the response. Thank you. Second supplementary. Second supplementary, which is very important, madam. Anganwadi workers get the pay of average around 10,000 rupees and helpers around 5,000 rupees. And they work from morning 8 a.m. to 4:30 in the evening. These people, due to the price hike and everything, they are suffering like anything to manage their life. Whether there is any consideration to increase the salaries, madam? Thank you. Which the honourable member seeks to speak of is not a wage but an honorarium. And if one can make the legal distinction between the same has been actually reflected upon by the Honourable Supreme Court. While the Ministry of Women and Child Development, under the aegis of the Government of India, ensures that Anganwadi workers get the honorarium to the tune of 4,500 rupees, along with additional cash incentives and other statutory incentives from the Government of India, we have time and again implored states to do top-ups, which has been done also in the state of Karnataka. And I must here, sir, highlight that apart from these interventions, the ministry periodically reaches out to state administration and tells them that we should not additionally burden Anganwadi workers with additional responsibilities which the district authorities may do from time to time. We have cautioned state governments regarding the same. Thank you. Srimati S. Fangnan Konyak. Vice Chairman, sir. My question to the Minister is whether Saksham Anganwadi will be implemented in Nagaland or not, and if yes, what budget has been allocated to Nagaland? Sir, with your permission, let me compliment the member. Nagaland. We all compliment her. I compliment her and I wish her well for her tenure of service on behalf of the state and my organization, जिसकी आज हम सब स्थापना दिवस मना रहे हैं. Sir, I would like to here highlight to the honourable member that for the state of Nagaland, the Government of India is committed to ensuring that through 3,980 Anganwadis, we help service the needs of women and children who come to these Anganwadis. She asked the question with regards to Saksham Anganwadi. I would like to highlight to the honourable member that we have definitely ensured that Saksham Anganwadi scheme is implemented across the country and also in the state of Nagaland. And for the year 21-22, the Government of India under this project has given to the state of Nagaland close to 15,000 lakh rupees. Thank you. Dr. Kanimoji Sonu. Thank you, sir. Sir, in the COVID pandemic, how was the scheme implemented?
when there was a total lockdown going on. And during the COVID pandemic, there were more malnourishment in the children. And how was it maintained? There was no census depending upon that in the period of 2021. Thank you. First question posed by Chandrasekhar ji, I have highlighted the recent WHO standard measurements of children, close to 1 crore children across all Anganwadis in the country, which has now highlighted that only 2% children are SAM children, which is possibly an indication, and I would like to hear answer, that MAM children have come up to 5%, which is, if you look at cumulatively, the number of children in the malnourished category between SAM and MAM is now 7%. And if you look at, sir, the last NFHS data, where the amount of such children is positioned at 19%, in fact, it is a compliment to the efforts of state governments and the collaboration that they've done with us at the Government of India, that you see a decline in that percentage from 19% to now 7%. However, as I've said earlier, sir, we would like the numbers to be validated by a third party, that being the Indian Academy of Pediatrics. They have been more than supportive of ensuring that this is validated. But this is indicative of the fact, sir, as the Honourable Member sought to know, what is the effect? You see that the effect is a decline in those numbers. And we have, sir, monitored the distribution of take-home ration to the doorstep of close to 9 crore beneficiaries, 7 crore children and 2 crore pregnant and lactating mothers, in collaboration with state governments, and ensured that there is a weekly review with state governments. Thank you. Ramila Ben Bara. उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। फिर भी आज ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइबल परिवार में कई छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो रही है। इसके वजह से कई छोटी उम्र में बच्चे पैदा होने के वजह से उनका मृत्यु हो जाता है, माता का भी मृत्यु कभी हो जाता है, जान खतरे में दोनों आ जाती है। इसके आंकड़े सरकार के पास होंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, उनको रोकने के लिए कोई आयोजन है, ठोस कदम उठा रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। संसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि पोषण अभियान समन्वय है भारत सरकार में 18 भिन्न भिन्न मंत्रालय और विभागों का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी सम्मिलित है। जो माननीय महोदया ने उल्लेखित किया इस सदन में, वो अपने आप में हम सबके लिए चिंता का विषय है। एक तरफ भारत सरकार पोषण अभियान के माध्यम से विशेषतः ट्राइबल संभागों में भी हमारी बेटियों को, महिलाओं को, बच्चों को हम सुपोषित कर पाएँ, इसका अभियान चला रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो फंडामेंटल इन्होंने प्रश्न किया कि छोटी और नाबालिग उम्र में बेटियों की शादी हो जाती है, इसी के परिवेश में भारत सरकार ने जो एज ऑफ मैरिज है उसमें प्रस्तावना की है, जो दूसरे सदन में लंबित है, उसमें प्रस्तावना की है कि हम बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाएं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 362, श्रीमती शांता छेत्री। Sir, my question is प्लीज माननीय मंत्री जी, अब आप पटेल पर रखा। पहला सप्लीमेंट्री शांता जी। Sir, through you, what are the steps taken so far to provide quick medical access to accident victims in National Highway? सम्माननीय स्पीकर महोदय, total of 710 ambulances have been deployed of NHI across 732 toll plazas. These ambulances attended to a total of 37,300 calls in year 2021-22. Regarding incident management has been deployed on the national highway stretches, where already we have given the facility of ambulance, crane and route patrol vehicle at 28 toll plaza in West Bengal. The helpline number is 1033 is created for emergency purpose for road users, and now we are developing 6 wayside amenities at every 40 kilometer along national highway and expressway, and more than 600 wayside amenities will be developed across 22 states of country in 2020. Before 2024 we will complete it, and there is a facility for drone landing and helicopter landing. The helicopter ambulance also can be useful because taking that patient to the hospital, it can be possible at due course of time we will take him to the hospital.
We are constantly very much worried about the accident rate. We have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. We are trying our level best that how we can remove the black spots, and actually that is the need of the hour. With the cooperation of state government and people by and large, our main important task is how to reduce the number of accidents in the country. We are working on that line. Second supplementary, Santaji. Sir, my second supplementary question is whether the government wishes to involve private hospitals in setting up trauma centers in National Highway. Thank you. Thank you for being very brief to the point. Speaker Mahoday, presently we don't have any scheme for involvement of private hospital, but this is a good suggestion, because actually in our department, we are only offering land, and the hospital is going to develop by the public health department. But actually about considering the experience, it can be a good suggestion for future. Government will definitely consider that. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी, क्वेश्चन बंगाल पर है, तो आपका सवाल बंगाल से जुड़ा है? मेरा अगर नहीं है तो नहीं, हम दूसरे सदस्य. ये सभी से जुड़ा हुआ है सर, जनरल सवाल. प्लीज प्लीज, इफ इट्स ए स्पेसिफिक ऑन बंगाल, प्लीज. माननीय मिस्टर पी विल्सन, योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बंगाल. Which Honourable Minister let will me answer. give- Thank you, Chairman, Please. sir. Honourable Minister, how far your ministry is encouraging both state government and hospital sectors for establishment of multi-speciality hospital with trauma care facilities alongside of national highways? Why not a signboard or a display board provided national highways indicating Honorable the P. distance Wilson of ji, the this question hospital? relates to West Bengal, please. No, but he Please. can answer. This is relating Please. to health, life Please, please, in general. प्लीज. माननीय संजय सिंह जी, बंगाल से संबंधित सवाल. Bengal. जो नियम आप सबने बनाया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ. बंगाल से संबंधित सवाल. अभीर रंजन विश्वास जी, अभीर रंजन विश्वास जी, अभीर रंजन जी, प्लीज. Thank you, sir. Sir, I would like to know, as per the reply given by the Honorable Minister, there is a trauma center at Islampur Sub-Regional Hospital in Uttur Dinajpur along the National Highway 34, and the next closest is the Murshidabad Medical College, and the distance between these is quite a few hundred kilometers. I would like to know, district Malda is in between where there is, and also Dokhin Dinajpur. I would like to know whether the government plans to have any trauma centers there. Thank you. Thank you. Sir, in the West Bengal, we have 28 toll plaza where the ambulance, crane and route patrol vehicle is available. There are some hospitals already in West Bengal, but our experience is not good. Because we are starting, when we start the hospital, we need cooperation from the health department of state government, and at the same time we need to take the decision with the guideline of the health ministry of government of India. But there is a good suggestion. If on the national highway, if the private doctors, if the orthopedic surgeons, if they want to establish their trauma center there, it can be a good scheme where government, my ministry will support them regarding development of trauma center there, and it can be more useful. Sir, one thing which I want to recognize here in the house, that in Tamil Nadu, actually they reduced the road accident by 52%. Now this is the time that I understand, I appreciate that we need ambulance, we need all type of facility. But same time, I will request all of you that if we can reduce the number of accidents, it can be a great achievement. Now the just government has submitted one plan we are going to the cabinet from World Bank cooperation of 14,000 crore. We are improving black spots, which are responsible for road accidents, and somewhere the cooperation from the people and the state government, I am confident that we can reduce the number of accidents. That is exactly the main cause where we need to concentrate more. But at the same time, the coordination between the state health ministry and central, it is difficult. So the good suggestion given by honorable member that we should consider that if the private doctor want to establish trauma center, we will find out some scheme where we can help them to start the trauma center on the road. Thank you. Question number 363, माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी.
Question number 363. माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, in the answer given by the Honorable Minister, the land was allocated in 2017 itself for KVS Kendriya Vidyalaya and 2 places in the state of Andhra Pradesh. But till August 2019, the work has not been commenced. Now it has to be at different stages of progress. That was stated in the answer. What is the step? What is the hindrances caused for establishment of this KV Institute and complete the construction even after 4 years? What is the reason for it? Thank you. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सत्यनापल्ली और राजमपल्ली ये दोनों 2017 में जमीन आवंटन हुआ था और अभी ये दोनों विद्यालय के कार्य प्रगति पर हैं। 80% से ज़्यादा कार्य हो चुके हैं, बहुत जल्दी ये पूरा होगा। Second supplementary. Sir, in respect of Indira Gandhi National Open University, the land has already, allocated, agreement is also entered. Either any time-bound program to complete this Indira Gandhi National Open University, because it is a new state capital, it has to be generated, employment is also. Thank you. सभापति महोदय, इग्नू के बारे में जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, तो ये देना था 2018 में, ये तय हुआ था, लेकिन 2018 में ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसमें कुछ राज्य को लेकर, राज्य की राजधानी को लेकर कुछ अड़चनें आई और अभी लास्ट में अभी 4 मार्च 2022 को एक लीज एग्रीमेंट हुआ है। अभी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में है। जैसे ही होगा फिर आगे उसकी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। माननीय वी विजय साई रेड्डी। Chairman sir. Sir, according to the norms, Kendriya Vidyalaya norms, every district in the state will have one Kendralaya, will be Kendriya Vidyalaya, and it will be eventually increased the number to two Kendriya Vidyalayas. Recently, Andhra Pradesh government has increased the number of districts from 13 to 26. I would like to know from the Honorable Minister whether the additional districts that have been created, the 13 districts additionally that have been created, will have Kendriya Vidyalayas, and what is the timeline within which the Government of India will set up the Kendriya Vidyalayas in these new districts? Thank you, Vijay. उपाध्यक्ष महोदय, विजय साई रेड्डी जी ने जो अभी कहा आंध्र प्रदेश में जिला की संख्या बढ़ा है, the newly formed districts, when Government of India is going to add on the schools. Let me inform this August House, there is no precondition, there is no policy of opening a new school district-wise. The primary condition of opening up a new central school is where the central government employee will be in a good number. To facilitate that, this is the primary criteria of opening up the new central school. So, district-wise central school is not a policy of Government of India. Thank you. Susmita Dev ji. Question है आंध्र प्रदेश। मैं आंध्रा का ही पूछूंगी सर। Please. मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि apart from government departments and state departments, sir, one important sector is the public sector undertaking, which also has Kendriya Vidyalayas for employees. So, public sector undertakings, many are being sold, and the education of those children are hanging in the middle. आसाम में ऐसे बहुत केसेस है, कच्छार पेपर मिलकर। आंध्र में, हाँ, क्या आंध्रा में ऐसे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहां आपने उसको बेच दिया है और केंद्रीय विद्यालय बंद होने के कारण उन बच्चों के एजुकेशन सफर हो रहा है? धन्यवाद। ऐसा कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कहीं खुलने का या बंद होने का। केरला में एक इश्यू ऐसा है, लेकिन आंध्र में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। माननीय थंबेदुरई जी। Question is on Andhra. Yes, I am, because Andhra is near. No, sir. Thank you. Sorry. Question number 364. Sir, Please. It's on Andhra. Andhra, yes, I am going to answer. Please.
Sir, land is a state subject. That is what our Andhra members raised. The land is given by the government to the Kendriya Vidyalaya. Because they are asking, when they are asking Kendriya Vidyalaya in Andhra also, they want land. Land is state subject. Therefore, when they are giving the land in Andhra, whether government is, why can't they start immediately? They are delaying, that is what our members are raising. Thank you. Whether the minister will come forward to implement that program early. Answer of my colleague, Government of Andhra Pradesh has given land in 17-18. 80% of those two schools has completed. This is our polite answer. Question number 364, Honorable Sri K.C. Venugopal ji. K.C. Venugopal ji, नहीं है. Supplementary. Sanjay Seth ji. कि क्या जैसे मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है, वैसे ही क्या सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए भी कोई मनरेगा की योजना बनाई जा रही है, और यदि हाँ तो उसका क्या स्वरूप है? धन्यवाद संजय जी. ग्रामीण इलाकों के लिए, शहरी इलाकों के लिए नहीं. माननीय शक्ति सिंह गोहिल. यहाँ पे मंत्री जी ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया है, कहा गया है कि हर साल इसमें हम, क्योंकि मनरेगा एक आशीर्वाद रूप काम गरीब लोगों के लिए इस बेरोजगारी के दौर में, कोरोना के दौर में काम लगता है. मंत्री जी ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया है उसको देखते हुए हर साल जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, द स्टेटमेंट गिवन इन अबाउट 2020, 21, 22 एंड 22, 23, उसमें 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसी बढ़ोतरी सिर्फ हुई है. तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कि जब गैस का सिलेंडर 410 का 1000 हुआ है, पेट्रोल 100 के पार है, महंगाई बहुत है, तो इसमें ज्यादा बढ़ोतरी आप करना चाहते हो या नहीं? धन्यवाद. मनरेगा का जो मजदूरी दर है, ये 2011 से CPI-AL के थ्रू हम इसकी बढ़ोतरी करते हैं, और आज भी हम उसी को आधार लेकर के, जो उधर बैठे हैं उन्हीं के समय से 2011 से शुरू यही आधार लेकर के हम उसी आधार पे और प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं. चाहे आप अगर देखेंगे तो 17-18 से लेकर के हर राज्य का जो लेबर रेट है, उस लेबर रेट को बेस मान करके जो CPI-AL है उसके आधार पे हम करते हैं. माननीय सुभाषिष चक्रवर्ती जी. Want to raise a question, sir. Sir, unemployment is a great challenge in the country, and Manrega is one way to earn livelihood as a unskilled worker. What steps did the government take during the lockdown and period of pandemic to ensure livelihood, to security through NRGS? Thank you, not discharged. Thank you. Sir, other question. No, you have already Sir, put one- two one questions. question. No, two questions you have already put. ये मांग आधारित रोजगार है, और मेरा मानना ये है कि भारत सरकार जितनी मांग होती है उतना हम देने के लिए प्रयास करते हैं, और इसमें कोई कमी नहीं आई. और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब कोरोना कार्यकाल में प्रवासी मजदूर वापस आए, उस समय बजट भी बढ़ा करके दिया गया. तो मुझे लग रहा है कि ये प्लीज आपस में बैठकर बात न करें. क्वेश्चन और चल रहा है, मेंबर्स का और है. प्लीज आपस में सीट में बात करके आप शोर करेंगे तो दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा. प्लीज. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 365, माननीय महेश पोद्दार जी. क्वेश्चन नंबर 365. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. महोदय, सरकार ने अपने जवाब में बताया है, और मोदी सरकार की कार्यशैली रही है कि किसी भी समस्या का यूनिवर्सल निदान कर दिया जाए और समयबद्ध तरीके से कर लिया जाए. महोदय, 2013 और 2018 के सर्वे के अनुसार अभी भी 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर बताए गए हैं. इस बीच लेकिन पुनर्वास और स्वरोजगार की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं.
महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज की स्थिति क्या है, क्या कोई नया सर्वे करके एक समीक्षा की जाएगी कि इन सब प्रयासों के बावजूद अभी भी मैनुअल स्कैनर देश में है क्या? धन्यवाद। सभापति महोदय, उन्होंने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हम जो महिला है, गांव की बेटी हो, माँ हो, सबको कम से कम 70 साल इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा एक प्रधानमंत्री आए और हम सबके लिए शौचालय बनाए। अभी तक देश में 12 करोड़ का ऊपर शौचालय बन गया है। और उन्होंने जो प्रश्न किया है 58,098 जो मैनुअल स्कैवेंजर हम लोगों ने 2013 से एक सर्वेक्षण किया और 2018 से 2020 तक दूसरा सर्वेक्षण किया। दोनों सर्वेक्षण में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर मिले। उन सबको हमारे विभाग के द्वारा 40,000 उन लोगों को पैसा दिया गया। उसके अलावा वहाँ का जो आश्रित परिवार है, सबको जो स्किल डेवलपमेंट करा के 2 साल के लिए उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, उसको रोज़गार दिया जाता है। उसके अलावा कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर हो, अभी यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत की तहत पूरा देश में शौचालय बन गए हैं। धन्यवाद। माननीय तिरुचु शिवाजी। Sir, it says that there is no report of deaths due to manual scanning. However, 161 persons have died due to accidents while undertaking hazardous cleaning of sewer and septic tanks during the last 3 years. This is called manual scavenging, sir. Please. Question, please. Sir, no, when the reply, it must be very pertinent, sir, not confusing. So, as per the statement, sir, there are only 58,098 manual scavengers that have been identified in the survey. But actually, they are more. It's not as the Honorable Minister replied. It doesn't restrict to latrines only. The septic tanks are the main things. So, it should be seen that the private people who engage them must be monetized. Thank you. And what are the steps you have given? Because the social stigma extends to their family also. What are the rehabilitation measures to their family? Thank you. Thank you. Sir. माननीय उपसभापति महोदय जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो सेप्टिक टैंक के संबंध में आंकड़ों की बात की गई, हमारे सीवरेज कार्य करने वाले हमारे व्यक्तियों के संबंध में मैं बतलाना चाहता हूँ कि 1993 से और अब तक सीवरेज कार्य करने में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, पहचान की गई है, उन सभी को एक और जहाँ 10 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 वर्ष का आंकड़ा मांगा गया था। आपने जो संख्या को उल्लेख किया वो 3 वर्ष का है। 1993 से लेकर और अभी 31/3/2022 तक सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हुए 971 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई है, जिसमें से 536 मामलों में एमएस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई और मृतकों के आश्रितों में से 703 व्यक्तियों को 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जा चुका है, 136 को आंशिक रूप से भुगतान किया गया और 34 के कानूनी बारिश का पता नहीं चला है। बाकी 98 के भुगतान की पुष्टि नहीं हुई है। जहाँ तक उनके आश्रितों की बात आपने कहा, उनके पुनर्वास के लिए तो जो भी हमारे इस तरह के सफाई के काम में लगे हुए हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको जहाँ एक और पुनर्वास के काम में जोड़ने के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण उनको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। वो या उनके परिवार का कोई आश्रित स्किल डेवलपमेंट की उसकी योजना के साथ में जुड़ता है तो 2 साल तक उनको 3,000 रुपया महीने का वजीफा भी उनको दिया जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय जी, निजी क्षेत्र के भी जो ऐसे जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी और हमारे नगर निगम की व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे जो कर्मचारी हैं, इनको मशीनीकृत सफाई की दिशा में प्रेरित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय महेश पोद्दार जी, सेकंड सप्लीमेंट्री के लिए चूक हो गई थी, आप पूछें। जी धन्यवाद महोदय, विशेष ख्याल रखने के लिए। महोदय, इस देश को सिर पे मैला ढोने के पाप से तो मुक्ति मिल गई है,
महोदय, लेकिन सीवरेज की सफाई से संबंधित समस्या अभी भी कुछ है। विश्व में इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और सफल प्रयोग हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि सीवरेज के मैनेजमेंट की इस नई तकनीकी के बारे में हमारे देश में क्या हो रहा है और कब तक इस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर देशों में सीवर और सेफ्टी टैंकों का सफाई के लिए मशीन का व्यवहार किया जाता है। उसके अलावा सफाई जो कर्मी होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो हमारे भारत में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मशीनें हमारे भारत में भी उपलब्ध है, हम भी मशीन से उसका सफाई करते हैं और जो कर्मचारी हैं उन लोगों को समय समय में हम लोगों ने ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑनरेबल जी के वासन। Will the government consider partnering with the corporate sector by encouraging them to take up rehabilitation works and providing them appropriate safety equipment so that manually scavenging sewage threat to human life will come down? Thank you. हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबको मशीन दिया जाता है। उनको अभी तक हम लोगों ने 927 प्लेसों में अभी तक हम लोगों ने उनको वर्कशॉप भी कराया। उन लोगों को मशीन भी देते हैं और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप 5-5 व्यक्तियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप करा के उनको 50 लाख रुपया उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप फ्रंट जो सब्सिडी है उसको करीब 19 लाख रुपया उनको मिलता है। और जिन लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे हम लोगों ने मशीन देते हैं उन लोगों को हम लोग 15 लाख रुपया उनको देते हैं। 5 लाख उनको सब्सिडी मिलता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, स्थानीय निकाय हो, सबको हमारे विभाग की तरफ से मशीन का उपलब्ध हम कराते हैं। माननीय नीरज डांगी जी। What steps is the government taking to improve the performance of schemes for the rehabilitation of manual scavengers, given that of the total identified manual scavengers, on 2.7% have received the capital subsidy and 31.3% have received the skill development training? Thank you. Thank you, sir. 2020-21 और 2022 तक मैं आंकड़ा आपको देता हूँ। जो 12,730 सफाई कर्मचारी को हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रदान किया है, उसके साथ साथ उन लोगों को हम लोगों ने मशीन भी उपलब्ध कराया। उसके अलावा 2021-22 तक हम लोगों ने 2,823 मैनुअल स्कैवेंजर को आश्रित लोगों को रोजगार देने का काम भी किया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 366 माननीय राकेश सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 366 माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव आंसर दिया है। जिन लोगों ने कश्मीर फाइल नहीं देखा है, कम से कम इस उत्तर को देख लें तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर का कितना डेवलपमेंट हुआ है। मेरा एक प्रश्न है मंत्री जी से कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब तक का डेवलपमेंट वहाँ पर अर्बन सेंट्रिक था। इस डेवलपमेंट से डोडा से लेकर बारामुल्ला तक आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आम लोगों तक, गांव के लोगों तक कितना लाभ पहुंचा है? धन्यवाद। महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल किया है माननीय राकेश सिन्हा जी ने। मोदी सरकार परिणाम देने वाली सरकार है। मोदी सरकार जो करती है वही कहती है और जो कहती है वही करती भी है। कितने सुखद परिणाम आए हैं। परिणाम सुनिए ना, मैं प्लीज बहुत चर्चा होती है रोजगार की। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगभग 51 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 51,000 करोड़ 51,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो वहां के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत ही ज्यादा सार्थक है। 4,50,000 लोगों से अधिक को रोजगार का अवसर प्राप्त होने की संभावना है। 2019 से अभी तक
26,303 पदों की पहचान की गई है, जिसमें 11,324 राजपत्रित कर्मचारी और अराजपत्रित कर्मचारी और 4th क्लास के पदों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शेष रिक्तियों की प्रक्रिया जारी है। तेज सड़क निर्माण के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। 2019 के पहले सड़कों का निर्माण का औसत 6.54 किलोमीटर प्रतिदिन था, जो बढ़कर अब वर्तमान में 20.68 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। 1000 से अधिक आबादी की बस्ती सड़क से जुड़ गए हैं और 2023 तक 500 आबादी वाली बस्तियां भी अधिकांश रूप में जुड़ जाएगी। सब महोदय 1 मिनट, कितना प्रभाव पड़ा है। काजी कुंड बनिहाल सुरंग के निर्माण से अब श्रीनगर से जम्मू की यात्रा जो पहले 10 घंटे में पूरी होती थी, अब 5 घंटे 50 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण 24 घंटे बिजली की उपलब्धता देने में सफल हो रहे हैं। IIT और IIM प्रारंभ होने से जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी आज तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 2 नए एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 2 राज कैंसर अस्पताल तथा 15 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। राजकीय डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बस 96 से बढ़कर 147 हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। घरों से टैप, पहले 31 घरों में टैप मीटर कनेक्शन से बस आधा मिनट सर, बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। आगे और सवाल हमको लेने हैं। पंचायती राज का चुनाव हुआ है, हो गया, जिससे सरकार हुआ है, रोजगार के अंतर्गत रिप्लाई मिल जाए। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 80 के दशक में कश्मीर के लोगों को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा था। वहाँ के लोगों के मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जमीन छीन ली गई। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि 2019 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारभूत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विकास हो रहा है, इस दौर में कितने हिंदुओं की जमीन और कितने मंदिरों की जो जमीन संपत्ति, जब मंदिर ध्वस्त किया गया था, उस जमीन को रिस्टोर करना, उनको चिन्हित करना, उस पर अधिकार दिलाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद महोदय। जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी अभिरक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिनांक 7/9/2021 को एक पोर्टल की शुरुआत किया है। जिन जिन पर जुर्म ढाए गए हैं, अत्याचार और अनाचार के कारण जो घाटी छोड़कर आए हैं, जिनकी संपत्तियां जबरन ले ली गई है, मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री जी सब ऐसी संपत्तियों को वापस करने में भी सक्षम है, लगातार प्रयासरत है। जिनकी शिकायत सही होगी, उनकी एक कर जमीन वापस की जाएगी। और अभी तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की गई है। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Deputy Chairman, sir. My question to the Honourable Minister stems from the facts that he has provided, where under the Prime Minister's Development Package 2015, 53 projects pertaining to 15 ministries are being implemented at a cost of 58,477 crores. My specific question is the government planning to increase the outlay, A, and if yes, by how much? Thank you. अध्यक्ष महोदय, 2015 प्रधानमंत्री जी के संग राज्य जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो योजनाएं लाई गई थी, जिस 53 परियोजनाओं की उन्होंने चर्चा की है, उसके लिए 58,477 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बड़ी तेजी से यह परियोजनाएं पूरी की जा रही है। इसमें बहुत सारी परियोजनाओं को पूरी की गई है, परियोजनाओं की समीक्षा होती है और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। विश्वास रखें, शीघ्र ही सारी परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाएगी। रजनी पाटिल जी। मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ, उनका अभिनिवेश देख के तो मैं बहुत हैरान हो गई।
ऐसे लग रहा है कि कोई हम सिनेमागृह में बैठे हैं और ये ऐसे आवेश में बोल रहे हैं। लेकिन मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की रियासत उन्होंने वापस ली है गवर्नमेंट ने, और जब उनका स्टेटहुड चला गया है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हिंदुस्तान में 1 नंबर की बेरोजगारी है सर। 17.5%, 17.5%। रजनी जी सवाल पूछिए। डेवलपमेंट के जो वादे करते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, इन्होंने बाहर के लोगों को दिया है, वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करने का मंत्री जी का कोई इरादा है क्या? धन्यवाद। महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया है और उन्होंने कहा कि जोर जोर से बोलते हैं, अगर धीमी आवाज से सुनना चाहे तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल आप जवाब समझाना भी चाहूँगा। जवाब दे। जम्मू कश्मीर संघराज्य के विभिन्न विभागों के कारण 26,630 पदों की पहचान की गई है और इन भर्तियों की प्रक्रिया भी हो, जिसको मैं पहले भी बोला हूँ और उसको मैं दोहरा रहा हूँ। और मैं चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों की विभिन्न स्वरोजगार योजना के तहत 1,37,837 व्यक्तियों को कवर किया गया है। परामर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विशेष भर्ती नियम बनाए गए हैं तथा विभिन्न विभागीय नियमों में संशोधन भी किया गया है ताकि रोजगार के अवसर शीघ्र ही प्राप्त हो। रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार पोर्टल बनाया गया है। बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न पदों की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए जिला स्तरों पर नियमित रूप से काउंसलिंग और ई काउंसलिंग सेक्शन भी स्थापित किए गए। हर प्रकार से व्यापक रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मॉडल कैरियर सेंटरों की स्थापना की गई है तथा रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। महोदय, मैं इसलिए इसकी चर्चा किया कि इन सब कारणों से जो वह कह रहे हैं वह असत्य है और जो उत्तर में दिया गया है यही सत्य है। रोजगार बढ़ा है, स्वरोजगार बढ़ा है, लोगों के मन में विश्वास जगा है और विकास भी हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी के सवाल प्लीज। मैंने एक सवाल पूछा था, 3893 क्वेश्चन है। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कश्मीरी पंडित्स का कितने जॉब्स लगे हैं, 3000 जॉब प्रॉमिस किए थे और उन्होंने जवाब कश्मीरी पंडित नहीं कहा है, उनको कश्मीरी माइग्रेंट्स कहा है। कब कश्मीरी पंडितों को माइग्रेंट्स का जो लेबल दिया हुआ है ये कब खत्म होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। थैंक यू महोदय, मैं तो और संशोधित करना चाहता हूँ। मैं तो हिंदू कश्मीरी पंडित कह रहा हूँ, हिंदू कश्मीरी पंडित। प्लीज। और मैंने उत्तर में पहले भी दिया हूँ कि जो लोग वहाँ जाना चाहे हैं उनके लिए हम वहाँ आवास भी बना रहे हैं। अब तक जो वहाँ नौकरियाँ दी गई है कश्मीरी पंडितों को, मैं उसको दे रहा हूँ। लगभग वह नौकरियाँ अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि सही आंकड़ा देना चाहता हूँ इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अब तक की गई नियुक्तियों की संख्या प्लीज 2000 कश्मीरी पंडितों की कहते हैं जो किसी न किसी प्रकार से वहां से भगाए गए थे, उसकी बात मैं कर रहा हूं। 2020 और 21 में 841 और 2021-22 में 1264 ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं और उनके पास कोई नौकरियां लेने के चाहते हैं जो पुनर्वास है उनको सरकार देने के लिए तैयार। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 367 माननीय अनिल देसाई जी। थैंक यू माननीय मंत्री जी। 367 उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। प्लीज फर्स्ट सप्लीमेंट्री अनिल जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. My first supplementary, sir. Due to these geoclimatic conditions and socio-economic conditions also, we Indians are vulnerable in various degrees to natural disasters, such as floods, cyclones, जो भी आते हैं, droughts रहते हैं, earthquakes, landslides, epidemics, pandemics. Sir, these catastrophes cause massive damage to life and property. So may I know from the honorable ministers, and in the last few years we've seen that due to global warming, climate change, this is on the rise. May I know from the honorable minister through you, sir, whether NDMA or the government is thinking to explore on the lines of how to cover
or usage of financial tools like risk insurance. Is there any thinking which is there in the government, so that if this is taken care by risk insurance or so, it can be compensation, this massive losses can be compensated which come due to disaster. Thank you. Thank you. उन्होंने सबसे पहले हीट वेव की बात कही। हीट वेव के कारण बहुत ही अधिक मौतें बिहार में हो जाया करती थी और एनडीए ने हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य हीट वेव संभावित राज्यों को अपना हीट एक्शन प्लान तैयार करने में सुविधा प्रदान हो। सभी हीट वेव संभावित राज्यों के साथ हीट वेव की तैयारी संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई है। हीट वेव से संबंधित मुद्दों पर गहन अनुसंधान में भी सहायता प्रदान की जाती है राज्यों को। इन उपायों के परिणाम स्वरूप हीट वेव के कारण जान माल की नुकसान में उल्लेखनीय कमी हुई है। 2015 में राज्य सरकारों द्वारा लू से मरने वाले की आंकड़ा जो दिया गया, संख्या दी गई, वह 2040 थी। 2040 मौतों की हीट वेव आपने कहा, आप जो और बोले हैं क्या प्रावधान करते हैं इंश्योरेंस का, वो भी हम हीट वेव की उन्होंने चर्चा की है नहीं? अगर आपको वो आंसर नहीं, प्लीज क्या माननीय सदस्यगण, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, 2020 में वो एक मिनट माननीय मंत्री जी, 4 हो गई है, 4। माननीय सदस्यगण, आप प्रक्रिया जानते हैं। किसी मंत्री के सवाल से अब अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, आप उसका पालन करिए प्लीज प्लीज प्लीज। जहां तक उन्होंने अच्छा महोदय अगर मैं उनके प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहा हूं तो उनका प्रश्न हीट वेव पर था, अगर नहीं था तो प्लीज दोबारा प्रश्न करें। क्या करें? माननीय अनिल जी, प्लीज नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो रिस्क फाइनेंसिंग, रिस्क इंश्योरेंस का कोई आप डिवाइस यूज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का बहुत मैसिव लॉसेस होते रहेंगे करके। एनीवे, माय सेकंड सप्लीमेंट्री, यू कैन राइट बैक टू मी, आप आंसर दे सकते हैं मेरे को। सर, माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज, sir, with the efforts of NDMA, there was a good measure which has come in place. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, that is CDRI, and that was launched by Honorable Prime Minister, and that was presented in United Nations Summit which was there in 2019, where our CDRI was acclaimed by different countries, and 30 countries have become member to that. They have endorsed the charter. May I know from the Honorable Minister what is the basic objective or the salient features of that CDRI? Thank you. Thank you, Anil ji. वो तो हीट वेव के बाद जो उन्होंने दूसरा उत्तर था, एक लाइन में मैं प्रश्न था कह देना चाहूँगा कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया के साथ इस विषय पर काम कर रही है और इससे इंश्योरेंस सॉल्यूशन करने में, निकालने में मदद मिलेगी और उस तरफ सरकार पहल कर रही है। दूसरा है कि अभी जो प्रश्न उन्होंने कहा है उसमें जो आपदा रोधी और संरचना के लिए गठन CDRI है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था और उसके बाद से 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार संगठन में 30 राष्ट्रीय सरकारों, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं 2 निजी क्षेत्र के संगठनों सहित 37 सदस्य जुड़े हैं और अब CDRI का नई दिल्ली में एक सचिवालय भी है जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। महोदय, इसमें बिजली, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शहरी अन्य संरचनाओं की सहनशीलता संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक राय तैयार करने के लिए इसमें सम्मेलन किए जाते हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भी भारत ने किया है। 2021 में सम्मेलन छोटे विकासशील द्वीप राज्यों की संवेदनशीलता के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। थैंक यू। माननीय सतीश चंद्र दुबे, आपके माध्यम से
मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के प्रयासों से आपदा प्रबंध में कितना प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद। महोदय, एनडीएमए के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रकार के उल्लेखनीय सुधार भी किए हैं तथा सफलता भी मिल रही है। आपदा के समय माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी भी करते हैं और कोविड का समय हो, चक्रवात के समय में, वज्रपात के समय में, शीतलहर के समय में, हीट वेव के समय में, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, इस सभी समय में एनडीएमए के सुझाए गए रास्तों के आधार पर और स्टेट से कोऑर्डिनेशन जो गृह मंत्रालय करती है, स्वयं राज्यों से कभी कभी बड़ी आपदा की जब पूर्वानुमान किया जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी स्वयं राज्यों से भी मीटिंग करते हैं और इसके लिए आपदा मित्र भी बनाए जा रहे हैं। सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल भी ला दिया गया है, आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है और सबों के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है। टेक्नोलॉजी को समाहित किया गया है और प्रयास हो रहा है कि ज्यादा जागृति ला जाए और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में कहीं न कहीं धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, it is being heard and it is felt that whenever there is any disaster taking place in any state, the representatives of NDMA, they used to visit. But it is seen that they visit and they report with some ulterior motives for some particular states. So far our state of West Bengal is concerned, in the recent past, West Bengal was badly affected by Amphan, Yas, and even in COVID and Bulbul. We have seen the team visited. We have seen our respected Prime Minister also visited. But unfortunately, we are yet to get the financial aid which we are supposed to get from the central government. Through you, my question to my minister is, why such discrepancy with the most potential state run by opposition like West Bengal? Thank you. महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पहले से भी ज़्यादा सुधार हुआ था। पहले तो कोई आपदा आने के पश्चात जब अनुरोध मिलता था तब यहाँ आईएमसीटी की टीम जाती थी, लेकिन अब तो राज्य अनुरोध नहीं भी करता है तब भी आपदा के पश्चात तुरंत ही यहाँ से आईएमसीटी की टीम जाती है, आकलन करती है, उसकी एक प्रक्रिया है। वित्त आयोग के द्वारा उसको कुछ निर्धारित उसकी शर्तें हैं, कुछ एनडीएमए के सुझाव गए रास्ते के आधार पर जो वहाँ से आकलन आता है उसकी यहाँ समीक्षा होती है, उसकी एक कमेटी बनी हुई है और समीक्षा करने के बाद उसका भुगतान भी होता है। लेकिन महोदय, एक चीज़ समझने की बात है कि यह सहयोग, यह क्या है ना कि यह एक सहयोग है पुनर्निर्माण या नवनिर्माण की योजनाओं के साथ राज्यों के द्वारा जो एक बड़ा बजट के साथ भेजा जाता है, जो आपदा के मूल भावनाओं में सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है उससे वह अलग होती है और वह तो पहला काम राज्यों का होता है और राज्यों को एसडीआरएफ का फंड पहले ही उपलब्ध करा दिया जाता है और मैं बता रहा हूं कि एसडीआरएफ का फंड पर्याप्त मात्रा में जाता है। पहले जो वित्त आयोग अनुशंसा करता था, 15वीं वित्त आयोग ने जो एसडीआरएफ के लिए एनडीआरएफ के लिए जो फंड बनाया है वह 109 गुना बढ़ाकर मोदी सरकार दे रही है, 109 गुना। जहां तक बंगाल की बात है तो मैं बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी उस समय वहां गए थे तो उन्होंने 1000 करोड़, सर उनको सोचना चाहिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ अम्फान के बाद वहां देकर आए, 1000 करोड़। और सर मैं तो पश्चिम बंगाल के सदस्यों को कहना चाहता हूं, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। शांतनु सेन जी, प्लीज। के पूर्वानुमान के बाद जब हम वहां एनडीआरएफ की टीम भेजते हैं, जब हम उसको आपदा वाले क्षेत्रों से निकाल कर हम बाहर लाना चाहते हैं, उसमें भी सहयोग
राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है, उसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य बनता है। मोदी सरकार संवेदनशील है, उनके असहयोग के बावजूद भी पश्चिम बंगाल, चूंकि आप मोदी जी की सरकार संवेदनशील है, उस दुख की घड़ी में हम हर प्रकार से जो हमारा नियम है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते हैं, हम उसको रंजन जी, दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज जी, अबीर रंजन जी, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, प्लीज। माननीय जीवीएल नरसिंह राव, माननीय, उसके लिए प्रॉपर रास्ता है करने के लिए, मैंने आपको अपील किया, फॉलो दैट रूट, प्लीज। जीवीएल नरसिंह राव। Thank you, sir. I would like to congratulate the government for timely release of SDRF funds. Andhra Pradesh had recently severe floods and loss of chili crop, but the state government has not paid even a penny, and the money was diverted for other purposes. SDRF money, disaster response fund money, in which central government contributes 75%. Ministry of Finance said there is a diversion. My question is, maybe such a diversion happened in Bengal also. I would like to ask the Minister, Honorable Minister, whether the Ministry of Home Affairs will undertake an inquiry and find out about the diversion of funds which are meant for disaster relief in Andhra Pradesh and maybe in Bengal as well. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को मैं यह बताना चाहूँगा कि जो राशि एसडीआरएफ का हिस्सा जो राज्यों का होता है, वह हम उस हिस्से में कहीं कमी नहीं करते हैं, उसको समय पे हम उसका भुगतान कर देते हैं, उनको मुहैया कर देते हैं, उनके पास भेज देते हैं। और यह आपदा राज्यों का पहला विषय, प्राथमिकता के साथ वह उस पर पहले सहयोग के लिए उनको आने का अधिकार उनको प्राप्त है। हम तो पीछे से सहयोग में जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपदा उस एसडीआरएफ के फंड का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, या तो अभी हम उनको बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम एसडीआरएफ के फंड को समय से हम उपलब्ध करा देते हैं। जो राज्य नहीं खर्च करती है, उसके बावजूद भी अगर उसके यहाँ बची हुई राशि रहती है, उसके बावजूद भी उसका कुछ शेयर निकलता है, तो उसको हम उसके साथ हम उसको लाकर उसका हम शीघ्र ही भुगतान करते हैं। केंद्र सरकार उसमें कभी भी किसी भी राज्य के एसडीआरएफ फंड नहीं रखती। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 368, डॉक्टर एल हनुमंतैया जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, total physically handicapped people in the country is 2.8 crore, which is 2.2% of the population. Sir, I have asked for the pension to be given to them. That is, only 3.8% of the total population is being covered under pension. Why all the physically handicapped people are not being given the pension? That is my question, sir. Thank you. First of all, राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो पेंशन संबंधी प्रश्न उठाया गया है, केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजनों को, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जितने भी दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण होने के बाद और पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसमें पेंशन देने का काम निरंतरता के साथ में जारी है। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, the central government is giving only 300 rupees as pension, sir. In the whole, which is, I mean, very, very insufficient, as everybody knows in this house. Sir, my question is, only 2 states in the country are giving at least reasonable pension. One is Telangana, 3,160. Another one is Delhi, 2,500. Sir, I want the direction from the central government, all the states, at least 2,000 should be given to differently abled person. And one more thing, sir, I want to request the government of India to have a survey for those who wanted pension and those who are eligible for pension, and all those people should be given minimum pension of 2,000 rupees across the country. So both these points are suggestions or questions? Yeah, this is my question. Please. दिव्यांगजनों को दी जाने वाली टॉप अप करने के लिए
राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं और अनेक राज्य सरकारों के द्वारा इसमें अलग अलग तरीके से माननीय मंत्री राशि जी दी जाती है। 1 बज चुके हैं। एक क्वेश्चन और खत्म हुआ। प्लीज स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर टू क्वेश्चन साध्वी निरंजन ज्योति टू ले। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित दिनांक 23 मार्च 2022 राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2342 के उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2 PM